Assalamu alaikum dear students. Welcome to Superior Learning Management System. I am Sayyid Rahil Muzaffir and we will be studying about sport and movement, that is chapter 16 in your second year book. So, why there is a concept and need for movement in sport? Obviously, when you want to move, your system, your body should support you in this regard. So, we will be studying about what is its concept and why there is a need for such a system. So, both animals and plants they show physical and biochemical activities, a lot of different physical and biochemical activities. And the main difference between plants and animals is that plants do not locomote while animals can locomote. Locomotion means that you can move from one place to another. This is locomotion, that is a characteristic of animals, but it is absent in plants. Plants do show movements, but they do not locomote. And whether they are plants or animals, gravity has effect on them. Gravity tries to pull them towards the earth, while these plants and animals have to support them against gravity. So their body should be having a structure that should support them against gravity, and that should help them to maintain their upright stature. So now we will be studying about plant tissues. There are two types of plant tissues. One is colon-chyma cells and other are sclerenchyma cells. Colon-chyma cells supports baby parts of plant, while sclerenchyma supports adult plants. In animals, there are muscles and bone and cartilage, and all of three help the animal to move towards food, to move from away from danger, and to help them to get shelter. So first we will study about supporting plants. So plants has different parts like stem, root, and leaves. So we will be studying about stem because it is involved in supporting plant. So stem provides support to the plant and it acts as a supply line between roots and aerial parts. Like it connects roots to the aerial parts that are leaves. So roots absorb water and minerals and they are transported to leaves with the help of stem. So it means that conducting system that supplies that transports water and solids from roots to the leaves passes through the stem. So in addition to acting as a supply line between roots and aerial parts, it also provides them support. So now there are different types of cells that share these functions in the stem, like epidermis and cortex and pith. All of them take water by osmosis, and turgor pressure is maintained between them. And that turgor pressure helps support plant to maintain its position. So now here you can see a diagram. The epidermis is the outermost part, colon-chyma, parenchyma, they form to make cortex, they combine to form cortex, then the pith is towards the inner core, and then there is a vascular bundle, and you know that vascular bundle contains xylem and phloem. So colon-chyma and sclerenchyma cells, they have lignin in their cortex and xylem tissues. Lignin is an organic substance that is hard and that is tough, that is inextensible. So lignin is an organic compound. It is not a carbohydrate, it is not a protein, but it is a purely organic compound. So in terrestrial plants, the plants that are present on Earth that grow on a system, on an ecosystem that does not contain much water. So this is an aerial ecosystem. In aerial ecosystem, in terrestrial ecosystem, the major stress that plants face is the wind. When wind flows, the force of the wind tries to bend the trees, try to break the stem of the trees. So what stem has to do? Stem has to provide the upper parts or the branches or the leaves of the tree to be at their place. So wind will try to break them while stem will try to maintain the upright position. So that stem should be very strong to have that kind of effect. So vascular bundles, xylem and xylem are present in the stem and they're tough and inextensible and they function as a steel rod, like you see some kind of a pillar in a mega construction.
So that pillar is made up of concrete, and that concrete is given strength by steel rods, and that steel rods are present within the concrete columns. So these bundles are present in a ring form, and these bundles, while presenting in a ring form, they provide effective resistance to wind, and also they help trees to weigh their weight, to bear their weight. So now there is a process by which turgor pressure is maintained, that water gets into the plant cell by osmosis, and hydrostatic pressure or a turgor pressure is maintained in the plant cell, and this provide resistance to the bending. And obviously, if there is no turgor pressure, the plant will wilt. सो सनफ्लावर में स्टेम के अंदर एडिशनल सक्लेरेंकाइमा फाइबर्स होते हैं, और ये एडिशनल सक्लेरेंकाइमा फाइबर्स वास्कुलर बंडल को स्ट्रेंथ करते हैं, और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं बंडल कैप. सो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें सक्लेरेंकाइमा ये बंडल कैप का एरिया फॉर्म कर रहे हैं, और इसमें और भी पार्ट्स है जिसमें एपिडर्मस एपिथ है, और ये वो है जी सनफ्लावर का प्लांट जो आप देख सकते हो, जिसके अंदर ये सक्लेरेंकाइमा फाइबर्स मौजूद होते हैं. सो वैक्यूल का टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में क्या रोल है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट. टोनो कम्स फ्रॉम सॉल्ट. सो इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये सॉल्ट्स को अक्रॉस द वैक्यूल मूव करवा सकते हैं. अब ये एबिलिटी कैसे आती है? बिकॉज टोनोप्लास्ट में बहुत सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, यानी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि एक्टिवली आयंस को वैक्यूल के अक्रॉस मूव करवा सकती हैं. सो टोनोप्लास्ट की मदद से जो प्रोटीन्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, ये वैक्यूल के अंदर आयंस को पुशन करते हैं, मूव कराते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म. अब चूंकि वैक्यूल के अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, मिनरल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो वैक्यूल के अंदर क्रिएट हो जाता है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट. इसको बैलेंस करने के लिए वाटर साइटोप्लाज्म से मूव करके ऑस्मोसिस के थ्रू वैक्यूल में आ जाएगा, वैक्यूल का साइज बड़ा होने लग जाएगा. इस तरीके से टर्गर प्रेशर मेंटेन होकर टर्जिडिटी आ जाती है. सो टर्गर प्रेशर मेंटेन होता है बाय ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल वैक्यूल. अब ये देख सकते हैं कि प्लांट मुरझाया हुआ है, चूंकि वैक्यूल के अंदर टर्जिडिटी मौजूद नहीं है, और जब टर्जिडिटी वैक्यूल के अंदर आ जाती है तो प्लांट रेक्ट हो जाता है, अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है. अब हमने टाइप्स पढ़नी है. सक्लेरेंकाइमा सेल्स, ये इनके अंदर थिक सेकेंडरी वॉल्स होती हैं, और उसके अंदर लिग्नन मौजूद होता है. ठीक है जी. और ज़्यादातर ये नॉन लिविंग सेल्स होते हैं, और ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. और लिग्नन एक्चुअली क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि वॉल को टफ एंड हार्ड बनाता है. आप ये देख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. फिर इसके 3 टाइप्स हैं. पहले टाइप से फाइबर्स और ट्रिकाइड्स, जो कि लॉन्ग है, सिलेंडर की फॉर्म में है, और ये बंडल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं जाइलम के अंदर, और ये बंडल कैप्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं. सक्लेराइड्स ये फाइबर से छोटे होते हैं. ये सीड कोड या नट शेल जो आप बादाम वगैरह खाते हैं, उनमें आप फाइबर्स की फॉर्म में देख सकते हैं, ये एक्चुअली सक्लेराइड्स हैं. फिर वेसल्स और ट्रैकिया, ये ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, और ये एंड टू एंड ज्वाइन होके एक कंडक्शन पाइप बनाते हैं जाइलम के अंदर. फिर ये बुक की डायग्राम है. सक्लेरेंकाइमा फाइबर है, ये सक्लेरेंकाइमा सक्लेराइड्स हैं. टीएस का मतलब होता है ट्रांसफर सेक्शन. अगर किसी चीज़ को आप ऐसे काटें तो उसके अंदर से जो चीज़ नजर आ जाती है उसको ट्रांसफर सेक्शन बोला जाता है. कोलनकाइमा सेल, इनमें प्रोटोप्लास्ट होता है, यानी ये लिविंग होते हैं, और इनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, और ये सिलेंडर या स्ट्रैंड्स की फॉर्म में ग्रुप हो जाते हैं, और ये यंग हर्बेशियस पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. यंग स्टेम जो है, यंग स्टेम के अंदर बिल्कुल सरफेस के नीचे कोलनकाइमा सेल्स होता है, ताकि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें. और ये सेल्स इलास्टिक होते हैं, और स्टेम और लीफ जैसे जैसे ग्रो करते रहेंगे, इनकी लेंथ में भी इजाफा होता रहेगा, चेंज होता रहेगा. तो ये ट्रांसफर सेक्शन है, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये लेंथ वाइज है, और ये ऊपर से नीचे अगर कट करें तो उसको बोलते हैं टीएस सेक्शन. सिग्निफिकेंस है जी. सेकेंडरी ग्रोथ की 2 तरह की ग्रोथ होती है प्लांट्स में. एक प्राइमरी ग्रोथ है जिसमें लेंथ में इजाफा होता है. सेकेंडरी ग्रोथ में थिकनेस में, डायमीटर में इजाफा होता है. स्टेम और जो रूट हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं कब? जब एम्ब्रियो बन जाता है, जब प्राइमरी टिश्यू बन जाता है. और एम्ब्रियो प्राइमरी टिश्यू किससे बनता है? एपिकल मेरिस्टेम से. मेरिस्टेम ऐसे टिश्यूज हैं प्लांट्स में जिनका काम है प्लांट की ग्रोथ में इजाफा करना. मेरिस्टेम की टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप होती है एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल कम्स फ्रॉम एपेक्स टॉप.
सो जो टॉप के ऊपर मेरिस्टेम्स मौजूद होते हैं किसी भी प्लांट पार्ट के, वो एपिकल मेरिस्टेम्स। तो एपिकल मेरिस्टेम जब एम्ब्रियो बना देंगी तो उसके बाद उसमें थिकनेस में, प्लांट की थिकनेस में इजाफा हो जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो होती है ड्यू टू वास्कुलर और कॉर्क कैम्बियम। कैम्बियम की टाइप्स हैं वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ ज़्यादातर हमें नजर आती है वुडी प्लांट्स में, पीरियड प्लांट्स में, जो सदाबहार प्लांट्स होते हैं, जैसे बेलें हैं, वाइन्स हैं, दरख्त हैं, शर्ब्स हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ है एक्चुअली कॉर्क और वास्कुलर कैम्बियम में डिवीजन की वजह से। वास्कुलर कैम्बियम जब ग्रो करते हैं तो ये एज अ सिलेंडर की फॉर्म में अपेयर होते हैं और इन सिलेंडर्स के अंदर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। और वास्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। और वास्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। सेकेंडरी जाइलम वास्कुलर कैम्बियम के इनसाइड बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम वास्कुलर कैम्बियम के आउटसाइड बनता है। यानी कि अगर आप उसे इसकी एनाटॉमी स्टडी करेंगे तो पहले सेकेंडरी फ्लोएम आएगा, फिर वास्कुलर कैम्बियम आएगा और फिर सेकेंडरी जाइलम आता है। सेकेंडरी जाइलम जो है वो ज़्यादातर स्टेम की जो थिकनेस है वो सेकेंडरी जाइलम की वजह से होती है। अब हर साल जो ग्रोथ होती है वो एक लेयर की फॉर्म में, एक रिंग की फॉर्म में एड हो जाती है, जिसको ग्रोथ रिंग्स बोलते हैं। और ग्रोथ रिंग से आप प्लांट की एज का पता लगा सकते हैं, ठीक है जी। और जो कंडक्शन है जाइलम में वाटर और मिनरल्स की, वो उसके यंगर पार्ट्स या आउटर पार्ट्स में होते हैं। जो इनर पार्ट्स होते हैं उनमें कंडक्शन नहीं रहती, वो ओल्ड पार्ट्स हो जाते हैं। जो एक्टिव पोर्शन है जाइलम का जो कि वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको सैप वुड बोलते हैं। सैप बोलते हैं वाटर और मिनरल्स के कॉम्बिनेशन को। जबकि इनएक्टिव और नॉन कंडक्टिव पोर्शन जो है उसको हार्डवुड कहा जाता है। कुछ प्लांट्स जैसे रेड सीडार और कोनीफर्स, वो इस हार्डवुड को वेस्ट नहीं करते, बल्कि उसके अंदर कुछ केमिकल्स जैसे रेजिन्स हैं, ऑयल्स, गाम्स एंड टैनिन्स, इनको स्टोर कर लेते हैं। और फिर इन केमिकल्स के जरिए वो एक तो डिके से बचते हैं, अपनी तोड़फोड़ से बचते हैं, और दूसरा इंसेक्ट्स को ये रिपेल करते हैं। अगेन ये फ्लोचार्ट की फॉर्म में सेकेंडरी ग्रोथ केस में वास्कुलर कैम्बियम की वजह से है। वास्कुलर कैम्बियम में सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, और ये वास्कुलर टिश्यू हैं, और फिर उसके दो पार्ट्स बन जाते हैं, एक सैपवुड है और एक हार्डवुड है। तो अब इसमें देख सकते हो कि एक और कैम्बियम है, वास्कुलर कैम्बियम है, और ये रिंग्स की फॉर्म में, ये थिकनेस में इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे थिकनेस बढ़ती जाएगी, रिंग्स ऐड होते रहेंगे, थिकनेस बढ़ती रहेगी। तो अब देखें, फर्स्ट करें अगर 20 रिंग्स हैं तो आप एज जो है उसकी 20 साल है। ये जी बुक की ही डायग्राम है, कॉर्क है, सैपवुड, हार्टवुड। इसी तरह आप देख सकते हो कॉर्क सबसे बाहर है, फिर फ्लोएम है, फिर कैम्बियम है, फिर सैपवुड और फिर हार्टवुड है। और ये इसमें बार्क का हिस्सा दिखाया हुआ है, वुड का हिस्सा दिखाया हुआ है, और पिथ का हिस्सा शो किया हुआ है, यानी आउटर से इनसाइड की तरफ है। ठीक है जी। अब इसके अलावा कैम्बियम का एक फंक्शन तो ग्रोथ में था, इसके अलावा इसका एक फंक्शन का ये कैलस बनाता है। कैलस क्या है जी? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक कलेक्शन होता है, जो कि वूंड अगर किसी दरख्त को लग जाए, उसकी कोई लकड़ी उतर जाए किसी वजह से, वुड टिश्यू उतर जाए, तो उसके ऊपर पहले कैलस बनता है। अब होता यह है कि सॉफ्ट पैरेन्काइमल टिश्यूज जो हैं वो जहाँ पे जख्म लगता है उसके ऊपर या नीचे बनना शुरू हो जाते हैं। और कैलस का एक काम है कि ये जब बडिंग होती है प्लांट में, ग्राफ्टिंग होती है, तो उसमें ब्रांचेस को वो यूनाइट करता है, इकट्ठा करता है। इस तरीके से कमर्शियल कॉर्क जो यूज़ किया जाता है, मार्केट में अवेलेबल है, वो एक बार्क से हासिल किया जाता है, और वो बार्क होती है क्यूरकस सुबर। क्यूरकस सुबर एक प्लांट है उससे, और वो ये प्लांट है। ठीक है जी। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होंगी। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।